So hello to all the students. First of all, I will tell you what is the disclaimer of this video. This video is for education purpose only. No copyright infringement. This copyright belongs to its rightful owner. Credit goes to respective online video composers, teachers, institute and speakers, as well as video music composers and singers. And first of all, post warning, this video is for only education purpose. Okay, so from today we have started our advanced auditing chapter second. The second chapter will be audit under computerized information system environment. So first of all, hello to all the students. From today we have started our second chapter will be audit under computerized information system environment. As you all the know, this subject is totally belong to specialized auditing of for A group member student or for Mcom A group students. As all you know, first chapter we have completed on YouTube. The name will be of first chapter will Introduction and Standard on Auditing. So now we continue our second chapter is Audit under Computerized Information System Environment on as per the basis. I have to publish my all the videos of second chapter in YouTube. Okay, move forward to a next slide. In next slide, the content have been given of this chapter is introduction, meaning, scope of audit in a CSSI's environment. CAS full form will be computerized information system. Okay, this is a shortcut meaning of that computerized information system. The full form of CAIs will be computerized information system. Okay, then fourth last point we have discussed in this slides special aspect of in a CAS environment. Okay, so move to next slide. In next slide we have to give an introduction. First of all, I will tell you all of you students what is the meaning of auditing and why auditing is required for or needed for the organization, banks or partnership firm or other kinds of think business or which are related which have maintaining their audit work. Okay, so audit is nothing but an examination of books of accounts, vouchers, document in relating to detect errors and frauds in the organization, banks and partnership firm or other kinds of business. To find out errors, fraud in the organization, the company or partnership firm or banks are using auditing to maintain their financial statement for to know their actual financial position of current year or previous year. That's why they are preparing an auditing. Okay, that is the meaning of auditing, and that auditing is required for a company or business. So whether a company or any kind of business are maintaining an auditing, they are required to appoint an auditor for that company, and auditor must be qualified person or a professional person who have experience more than 5 to 10 years. That person who will be eligible or qualifiable for to making an auditing. Only the experienced person will be eligible for maintaining the transaction or maintaining the financial statement of an auditing. Okay, and that person we have called a auditor. Okay, that is the meaning of an auditing, and we have discussed the information of audit or information of say introduction of second chapter audit under computerized information system environment. Okay, first of all I will read that introduction. Information technology throughout the world has revolutionized and dramatically changed the manner in which the business is conducted today. Computerization has a significant effect and organization control flow of documents, information processes and so on they have maintained. Okay, as per information technology has been day to day have widely globally changed the world environment. Okay,
आप लोगों को पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत दे हैव इंट्रोडक्शन ईच एंड एवरीथिंग आर विल बी मेंटेन नाउ from online basis. Your lecture has been today conducting on a online basis, and previously we have taken in a classrooms, but now we have take lecture online basis because of information technology. And information technology is now will change totally the environment of our life or our business environment also. ओके, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या क्या चेंजमेंट करे हैं. दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी चेंज नॉट ओनली पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, बट ऑल्सो चेंजेस द बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ एन business in a globally manner. So information technology, our information technology is playing most important role is now in a current basis or current crisis of coronavirus situation. As you know, सारे के सारे जो भी related transactions हो रहे हैं अब they have not using their hands, but they are maintaining as per on data, वही file maintenance or other kinds of collections of things they have only maintain on computerized. So सब कुछ जो भी डाटा है सब भी अवेलेबिलिटी है, फाइल्स मेंटेनेंस है, विच वी आर प्रिपेयरिंग एज ओल्ड टाइम्स इन एंट्रीज इन आवर बुक्स. सो अब ये वो बुक्स वगैरह एंट्रीज हम किस में पब्लिश करते हैं, वी हैव पब्लिश ऑन डायरेक्टली एंड फील दैट टू द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन environment. और ये dramatically conducted of a changes. This is a very new changes and this will also conduct a many part of business environment. So computerization is playing a most important role for an organization because it will be take a most for business flow, document information process and so on. They have also maintain each and every kind of information, files, documents, data of company, and that data of organization, company, banks and organization, they have feed and they फीड अपॉन एंड जो वो डाटा मेंटेन करते हैं. पहले ओल्ड टाइम्स में वो मेंटेन डाटा किस में करा जाता था, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजेक्शन्स. हम लोग डे टू डे एंट्री किस में करते थे, इन अ बुक्स, एंड दे हैव टेक वेरी टाइम. उसको बहुत ज़्यादा समय जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट होता था. बट नाउ द बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द एनवायरमेंट हैज़ बीन टोटली चेंज. ओके, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस है और जो भी उनकी फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन कहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस करी जाती है, अब जा कंप्यूटर के थ्रू. एंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आर फीड अप इन कंप्यूटर on today basis. Okay, this is an introduction of CA information, okay, information technology under computerized environment of a audit. So ऑडिटिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग. और फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन में बताया कि इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी, जो कंप्यूटर, और फर्स्ट इन्वेंशन जो कंप्यूटर की फर्स्ट इन्वेंशन जो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, दैट विल बी ओनली द कंप्यूटर. ओके, सो हम लोगों ने जब ऑनलाइन लेक्चर वी हैव कंडक्टेड ऑन प्रीवियस, जब हमने अभी ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहे थे लास्ट पास्ट 2 weeks, we have conducted on online lecture as per on Google Meet. We have also discussed this chapter, introduction, meaning and what is meant by hardware, software, and you will also all the student will answer me that what is the meaning of hardware, what is the meaning of software. Some student have tell me correct information about hardware and some student are say less information because they didn't know about whole kind of information what is the meaning of hardware and software. So I will tell you all kinds of information and who will launch computer first. Okay, move to next slide in. Okay, then we read what is the meaning of this chapter. Okay, first of all I will read also meaning. Audit in a CIS environment, even though has not changed the fundamental nature of auditing, it has definitely caused substantial change in a method of evidence
कलेक्शन एंड इवेल्युएशन। ओके, सो इसमें क्या मेंशन किया गया है, ऑडिट इन सी एस इन्वायरमेंट, कंप्यूटर ऑडिट क्या अगर हम ओल्ड टाइम्स में, ओके, सी एस इन्वायरमेंट मीन्स जो आजकल सी एस का मतलब कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो करंट बेसिस पे, और उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न बेस इन्वायरमेंट। सो प्रीवियस टाइम पे ऑडिटिंग कैसे करी जाती थी, वी हैव मेंटेनिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन अ बुक्स। हम जो भी एंट्री करते थे बुक्स की, कोई भी जो हम ट्रांजेक्शन जो परचेज कर रहे हैं, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट परचेज कर रही है, सेल कर रही है, इफ़ दे हैव काइंड्स ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स और काइंड्स ऑफ बुक्स एंट्रीज दे हैव मेंटेनिंग इन अ बुक्स। तो पहले टाइम्स पे बुक्स, ये जो एंट्रीज थी ये बुक्स में मेंटेन करी जाती थी। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ बुक्स विथ इन हैंड्स, पहले हाँ एंट्री करी जाती थी। और अब के ज़माने में, अब के टाइम्स में, इन अ मॉडर्न वेज वी हैव मेक एन एंट्रीज ऑन अ कंप्यूटर। जो भी एंट्रीज जो हम पहले बुक्स में एंट्री करते थे, अब हम डायरेक्टली वही एंट्री वी हैव डायरेक्टली एंटर्ड इन अ कंप्यूटर, एंड वो नेचर चेंज नहीं करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑडिटिंग, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग जो पुराने टाइम्स में जिस तरीके से एंट्री करी जाती थी बुक्स के अंदर, आज वही इस टाइमिंग पर डायरेक्टली द एंट्री विल बी टेकन इन अ कंप्यूटर। सो द कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट विल नॉट चेंज द नेचर ऑफ ऑडिटिंग। जो नेचर है ऑडिटिंग का, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन हैव बीन कंडक्टेड, जो डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा है, जो भी है, एविडेंस, प्रूफ, काइंड ऑफ वाउचर्स के डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस जो भी रिलेटेड हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे फीड अप होंगे, और वो बिजनेस का नेचर चेंज नहीं करेगा। ओके, सो कंटिन्यू, दिस ऑल्सो रिक्वायर्स ऑडिटर टू बिकम नॉलेज अबाउट द environment, hardware and software, etc., and keep pace with rapidly changing information technology, even to extent of sophisticated audit software. Okay, so this will not, auditor, अगर कोई भी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है, वेदर दे मेकिंग एन ऑडिटिंग, जब वो ऑडिटिंग कर रहे हैं और ऑडिटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, दे मेकिंग एन ऑडिटिंग in their business, for their business, so they have first appoint the auditor. Okay, and they have, whether they are appointed to an auditor, so they have first may see the auditor should have completely knowledge about the computer environment. तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के रिलेटेड, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर द कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द ऑडिटर। और जो कंप्यूटर के चेंजेस, आज जो कंप्यूटर के चेंजेस है, और ऑडिटर की को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर, कि हार्डवेयर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है, एंड जो चेंजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो भी टेक्नोलॉजी के चेंजेस हुए हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर, रिलेटेड टू इन दिस वर्ल्ड। ओके, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में और ऑडिटिंग सिस्टम्स में अगर चेंजेस हुए हैं, प्रोसीजर्स में चेंजेस हुए हैं, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को पता होनी चाहिए। सो अगर कोई भी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो वो किस बेसिस पे अपॉइंट करेगी, द ऑडिटर हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर। ओके, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहेंगे, सो दे हैव मेंटेन इन अ ऑडिटिंग, और उसको हम बोलेंगे दे वी हैव कॉल अप सोफेस्टिकेटेड इन अ ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। और उसको सबसे ज़्यादा, बिकॉज इफ दे हैव कंप्यूटर नॉलेज, सो दे हैव डायरेक्टली कनेक्टेड टू विथ कंप्यूटर ऑडिट सॉफ्टवेयर नॉलेज अबाउट। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस करे थे इन अवर पास्ट सेशन इन अ गूगल मीट, जब हमने ऑनलाइन लेक्चर गूगल मीट पे कंडक्ट करे थे, तो हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सो सम स्टूडेंट हैव करेक्टली सेड टू मी दैट व्हाट इज़ काइंड ऑफ मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो मैंने आपको यहाँ पे पब्लिश किया है डायरेक्ट कि ऑडिटर को नॉलेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और ऑडिटर को डिफरेंस पता होना चाहिए व्हाट इज़ हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर इज़ व्हाट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इज़ व्हाट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सो फर्स्ट आई विल रीड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर refers to the physical
elements of a computer in contract to motherboard, hard drive and RAM. Monitor, CPU, mouse, keyboard are the examples of hardware. Okay, hardware is the physical elements. हार्डवेयर क्या है? फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर है जिसको आप देख सकते हो एंड यू कैन यूज़ विथ योर हैंड्स. उस पर आप काम कर सकते हो. हार्डवेयर मीन्स जो यानी कि दैट यू कैन सी और टच विथ कंप्यूटर. सो वो पार्ट्स क्या है? दैट कॉल हार्डवेयर. और हार्डवेयर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? लाइक जो कंप्यूटर के पार्ट्स रहते हैं, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, रैम, मॉनिटर, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, ये सब किसके पार्ट्स हैं? हार्डवेयर के. और हार्डवेयर इज द फिजिकल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर. फिजिकली मीन्स दैट यू कैन टच और फील द कंप्यूटर. Okay, that is the meaning of hardware. Now we have discussed what is the meaning of software. Software refers to the unphysical element of computer. सॉफ्टवेयर क्या है? अनफिजिकल एलिमेंट है जिसको आप देख नहीं सकते एंड यू कैन नॉट, यू हैव सीन बट यू हैव नॉट टच, जिसको आप टच नहीं कर सकते. दैट्स पार्ट वी हैव कॉल ऑफ सॉफ्टवेयर. इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर. और ये किसके पार्ट है? कंप्यूटर के पार्ट हैं. सॉफ्टवेयर इज लाइक एग्जाम्पल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अदर काइंड्स ऑफ एप्स विच आर मेंटेन इन ऐप कंप्यूटर और फीड अप इन मोबाइल्स. ये सारे ऐप्स जो मोबाइल्स पे भी अवेलेबल्स हैं, तो इन ऐप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वी हैव टू से सॉफ्टवेयर. ओके, वी हैव से सॉफ्टवेयर. और जो फाइल्स वगैरह जो भी मेंटेन रहेंगी, फाइल्स हम प्रिपेयर करेंगे इन अ सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फाइल प्रिपेयर करते हैं, एक्सेल में फाइल प्रिपेयर करते हैं, तो उन फाइल्स को किस में फीड अप किया जाता है? वी हैव फीड इन सॉफ्टवेयर. और हम जो टाइप करते हैं इन अ माउस, कीबोर्ड और उनका जो रैम रहता है, तो इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर. देयर दिस काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन सॉफ्टवेयर, hardware. So auditor have must knowledge about what is the meaning of hardware, what is the meaning of software, whether they are making an auditing of a business to know the financial position of a business in a day or in a date, particular date which we have they prepared. Okay, move to next slide. थर्ड क्वेश्चन जो मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आई हैव आस्क्ड यू टू ऑल द स्टूडेंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मीनिंग वी हैव डिस्कस. एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था दैट विच पर्सन, आई विल आस्क यू दैट विच पर्सन हैज एस्टैब्लिश द कंप्यूटर फर्स्ट एंड आई विल आस्क यू दैट द नेम ऑफ दैट पर्सन. ओके, सो द नेम ऑफ दैट पर्सन विल बी विलियम Octord. William Octord will launch first computer in 1622. William Octord will be the first person who launched the computer. जो विलियम ऑक्टर्ड है जिन्होंने फर्स्ट इन्वेंशन करी थी कंप्यूटर की, दे हैव फर्स्ट इन्वेंटेड द कंप्यूटर. उन्होंने पहली बार कंप्यूटर की खोज की थी. ओके, कंप्यूटर की खोज किसने करी थी? विलियम ऑक्टवर्ड इन 1622. ओके, दे हैव फर्स्ट एस्टैब्लिश. और एंड द चार्ल्स बेबेज डेवलप द प्रोग्राम एंड फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इन द पीरियड ऑफ 1833 एंड 71. ओके, तो चार्ल्स बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज हैं, उन्होंने क्या डेवलप करे थे? कंप्यूटर के प्रोग्राम्स एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर. कौन से पीरियड? इन द पीरियड ऑफ 1833 एंड 1871 के पीरियड में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करा था, एक्स्टैब्लिश किया था कंप्यूटर, और इन्वेंशन करी थी कंप्यूटर प्रोग्राम्स की और कंप्यूटर के फंक्शंस की. ओके, सो नाउ द चार्ल्स बेबेज को कॉल अप किया जाता है आज के देश में और इन अ होल कंट्री और इन अ होल वर्ल्ड. द चार्ल्स बेबेज विल बी कॉल अप द फादर ऑफ कंप्यूटर. द फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज द चार्ल्स बेबेज हैव डेवलप्ड द प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड. इन नेक्स्ट स्लाइड we have discussed the scope of audit in a CAS
environment. CIS environment full form is computerized information system. Okay, so first point scope का क्या है, हाई स्पीड. ओके, बिकॉज कंप्यूटराइज सिस्टम की, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या फ़ायदा होता है, ऑडिटर को हाई स्पीड मिलती है. बिकॉज कंप्यूटर में कोई भी डाटा डायरेक्टली वी फीड अप कर सकते हैं, डायरेक्टली क्विकली चांसेस हैं. अगर वही डाटा हम बुक एंट्री में करेंगे, वी हैव रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स, कोई भी डाटा वी हैव रिकॉर्डेड इन बुक्स, सो दे हैव टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, तो और इन वेदर वी आर मेकिंग, अगर हम वही डाटा हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करेंगे तो उसके कंपैरिजन में हमें बुक्स रिकॉर्डर के कंपैरिजन में हमें कम टाइम जाएगा. वी हैव टेकिंग अ लेस टाइम टू मेंटेन दैट और टू maintain that transaction or to recorded that transaction. First of all, I will read that high speed. In a CSIS environment, information can be generated very quickly. जो भी ट्रांजेक्शन्स रहे CSIS environment, कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या है, जनरेट कर देता है ईजिली. तो वो क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड. तेज स्पीड रहेगी, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड द ट्रांजेक्शन हैव बीन जनरेटेड और रिकॉर्डेड विथ अ वेरी क्विकली. सारे ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्डेड रहेंगे विथ अ वेरी क्विकली फेज में सारे चेंजअप होंगे, और जो भी ट्रांजेक्शन है दे हैव मेंटेन विथ एन इक्वल फेज. इवन व्हेन अ कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स इन अ रिपोर्ट्स format can be generated for audit purpose without loss of time. Okay, whether the auditor have making an auditing or GVP they have maintained reports. अगर वो ऑडिटर को रिपोर्ट चाहिए कोई भी ऑडिटिंग की, उसको फॉर्मेट चाहिए, सो दे कैन वी हैव डायरेक्टली. सो पे ओल्ड टाइम्स में क्या करना है, ट्रेडिशनल टाइम्स में हम बुक्स रिकॉर्ड इन अ बुक करते थे, पर्टिकुलर ईयर की जो हमें डाटा मेंटेन करते थे हमारे ऑडिटिंग का, कोई भी बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशंस का और बैंक्स और पार्टनरशिप फर्म्स का. तो ओल्ड टाइम्स में वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बुक्स में एंट्री कर देते. तो उस ट्रांजेक्शन्स को हमें डायरेक्टली, इफ़ अगर हमें उसकी ऑडिटिंग को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, स्पेसिफिक रिपोर्ट कोई भी तैयार करनी है, तो उसको फॉर्मेट में ओल्ड टाइम्स में उन्हें क्या देखना चाहिए था, सारी बुक्स को उन्हें देखना पड़ता था कि किस में उन्होंने किस टाइप का पहले ओल्ड टाइम में लास्ट ईयर किस तरीके से ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी. ओके, बट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अगर इफ़ ऑडिटर को आज के मॉडर्न टाइम्स में ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और इफ़ स्पेसिफिक ऑडिटिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, दे हैव डायरेक्टली seen on computer without loss of time, because previous year they have go to the files और check what kind of audit report format. तो डायरेक्टली क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट को डायरेक्टली कंप्यूटर में क्या रहेगा, इजीली सर्च करेगा द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट एंड डायरेक्टली उसको अवेलेबल मिलेगा. बिकॉज और उसके लिए बिकॉज उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा टू सी. एंड इफ़ दे हैव सीन इन ट्रेडिशनल टाइम दे हैव रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम टू सर्च specific audit format, but now they have been changed because the time so उसके लिए अगर जो टाइम ये सारी चीज़ों का टाइम, बिकॉज ऑफ मॉडर्न टाइम से हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ऑडिटर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, तो इसके से इसको ऑडिटर को स्पेसिफिक रिपोर्ट का फॉर्मेट ईजिली मिल जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ टाइम, लॉस टाइम. और इससे जो ऑडिटर के पास क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा ऑडिटर को, और वो अपना समय वहाँ पे क्या करेगा, अपना रिव्यू देने में कर सकता है. दे हैव यूज देयर टाइम टू रिव्यू द ऑडिटिंग ऑपरेशन एंड हाउ टू मेंटेन और प्रोसीजर कौन कौन से फॉलो करने हैं, और जो उनका कलेक्शन भी कर सकता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट कर सके. जो इफ़ ऑडिटर को कोई भी स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी रहती थी, ओल्ड टाइम्स में वो ऑडिट रिपोर्ट इजीली नहीं मिलती थी बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ बुक्स. बट अगर कंप्यूटर में वो डाटा, कंप्यूटर इन्वायरमेंट में डाटा, वो डाटा स्पेसिफिक फॉर्मेट फीड है उस कंपनी का, तो डायरेक्टली चेक कर सकता है और उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा ऑडिटर को. और जो टाइम बचेगा वो टाइम वो कहाँ यूज़ कर सकता है, टू मेकिंग रिव्यू, जो भी उसके ऑडिट और जो प्रोसीजर उनको ऑडिटिंग के लिए फॉलो करने हैं, जो एविडेंस उनको करने ऑडिटिंग के लिए मेंटेन करने हैं, दे हैव एक्वायर्ड. तो वो जो टाइम, इनफ टाइम है, दे हैव एक्सटेंड दैट टाइम इन दैट पर्पस. सो वो टाइम वो कहाँ यूज़ कर सकता है, टू गिव
और टू प्रिपेयर ऑडिटिंग प्रोसीजर, कोई भी उन्हें फॉलो अप करने पड़ेंगे, एविडेंस उन्हें कलेक्ट करने होंगे, सो दैट टाइम दे हैव यूज इन ऑन दैट बेसिस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Next point will be low clerical error. Low clerical error means clerical जो staff members है, if they have maintaining, so okay, traditional times में वो data जो each and every entry करते थे, purchase entry, if supposed to anyone making purchase entry of any kind of a data, तो वो पहले क्या है डायरेक्ट बुक में एंट्री करते थे, तो उससे क्या कोई मिसस्टेटमेंट भी हो सकती थी. जस्ट काइंड ऑफ 400 का 400 चार्ज है किसी भी प्रोडक्ट का, परचेसिंग चार्ज अगर किया है, तो अगर मिस्टेकनली उसकी हम एंट्री कभी भी क्या कर सकते थे 450 भी कर सकते थे. बट कंप्यूटराइज अगर सिस्टम में करेंगे तो वो डायरेक्टली जो आइटम जिस टाइम अमाउंट में परचेज किया गया है उसकी एंट्री उसी अमाउंट में डायरेक्टली एंटर करी जाती है इन अ कंप्यूटर. इससे जो स्टाफ एरियर में कर रहा है, क्लरिकल स्टाफ एरियर में कर रहा है, तो इससे वो क्या होगा, रिड्यूस होगा. दैट क्लरिकल एरियर विल बी हाईली मिनिमाइज. ओके, सो ये इसमें कंप्यूटराइज ऑपरेशन सिस्टम की वजह से तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, और जो कमीशन ले रहा है, कमीशंस ऑफ एरियर्स कोई भी स्टाफ अगर कर रहा है, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली रिड्यूस होगा because of CAI's information system. So the making of that kind of information will be low. Critical error will be low or reduce होगा. So critical error will be highly minimized because of new computerized information environment. Third point will be concentration of duties in a concentration of duties. Okay, so first, whether the company or organization has appointed an auditor, the auditor first to separate all kinds of duties of maintaining transaction to each and every person of the organization और स्टाफ्स को. सो ऑडिटर क्या करेगा, ईच एंड एवरी स्टाफ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देगा. ओके, दैट काइंड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस पॉइंट्स क्या है, ऑडिटर क्या है, जो भी जब कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है और वो जो सेपरेट इंडिविजुअल है, तो वो ऑडिटर का वर्क क्या रहता है, टू मेंटेन और प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट और रिव्यू ऑडिटेड रिपोर्ट. ओके, सो ऑडिटर क्या रहेगा, इंडिविजुअल पर्सन को डिवाइड कर देगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू मेंटेन और रिकॉर्ड करेगा. और जो भी फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, टू वेरीफाई ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्सन और ऑफ दैट स्टाफ. ओके, सो ट्रेडिशनल टाइम्स पे ये सारी चीज़ें अप्लाइबल नहीं होती थी, बिकॉज ट्रेडिशनल टाइम्स पे क्या है, पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती थी कि हाँ आपको ये ट्रांजैक्शन बुक्स में एंटर करना है कि परचेज का है कि ये पहले खरीद करा. पर अब डायरेक्टली क्या है, दिस द बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स द मोर वन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एट अ टाइम कॉन्सेंट्रेटिंग. अगर इफ़ सपोज कंप्यूटर में डायरेक्टली एंट्रीज हो जाती हैं और इससे बिकॉज टाइम भी कम जाता है, ड्यूरेशन भी कम एक्वायर्ड रहता है. सो अगर किसी एक्टिविटीज़ किसी स्टाफ का पहले ही काम कंप्लीट हो चुका है, सो दे हैव मेंटेन फोकस ऑन नेक्स्ट वर्क ऑल्सो. सो बिकॉज ऑफ दैट, सो दे वर्क concentration of duty is now more flexible in a auditing of an organization. तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में क्या एक फॉलोअप करा है, मोर वन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एट वन टाइम. एक टाइम पे दो एक्टिविटीज़ फॉलोअप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और दो लोगों की ऑडिटर क्या कर सकता है, टू रिव्यू द ड्यूटीज़ ऑफ एन स्टाफ एट वन टाइम. और उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो एक टाइमिंग पे ऑडिटर देख भी सकता है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. ओके, सो बिकॉज तो ऑडिटर जिसको ऑडिटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करी थी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने वो काम टाइम पे किया है कि नहीं किया है, यह ऑडिटर आजकल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ऑडिटर डायरेक्टली चेक कर सकता है एक टाइमिंग पे. वो दोनों स्टाफ का परफॉर्मेंस और उनका वर्क चेक कर सकता है. ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. इन नेक्स्ट स्लाइड we have discussed fourth point, and fourth point we have discussed in this session only. In next session we have moved forward to our
another points. So the fourth point will be shifting of internal control base. Shifting of internal control base, first of all I will read application system development control. एप्लीकेशन जो शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मीन्स अंतर्गत जो है सिस्टम हम फॉलोअप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, स्टाफ मेंटेनेंस है, इफ़ टेस्टिंग रिपोर्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स जो भी रहेंगी वो हम क्या फॉलोअप करते हैं इंटरनल कंट्रोल बेस्ड सिस्टम के टूवर्ड्स में. जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिसके अंतर्गत सारे के सारे जो प्रोसीजर है कंपनी को फॉलोअप करने पड़ते हैं और ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के टूवर्ड्स ही सारे ट्रांजैक्शन, सारे ऑडिटिंग रिव्यूज़ देने पड़ते हैं. जो शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल. तो एप्लीकेशन कौन कौन से उसको डेवलप करने पड़ते हैं ऑडिटर को इन अ इफ़िशेंट मैनर. जो भी सिस्टम डेवलप करता है, कंट्रोल करता है, दे हैव टू डिज़ाइन द एश्योरेंस सिस्टम विच वी हैव डेवलप इन अ ऑथराइज एंड इफ़िशेंट मैनर. तो जो भी सिस्टम हम लोग डेवलप अगर कर रहे हैं एप्लीकेशन सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अगर हम लोग सिस्टम को जो डेवलप कर रहे हैं, कंप्यूटर आजकल सब कंप्यूटराइज है, तो अगर हम कोई न्यू सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं तो उसको हम क्या प्रोवाइड करें? इफ़िशेंसी प्रोवाइड करें. सो कौन कौन से सिस्टम आजकल, कौन कौन से सिस्टम आजकल लॉन्च हुए, एप्लीकेशन सिस्टम जो लॉन्च हुए हैं, टेस्टिंग है, कन्वर्जन, इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू सिस्टम. ओके, तो ऑडिटर को ये सारे एप्लीकेशन सिस्टम फॉलोअप करने पड़ते हैं वेदर दे आर मेकिंग एन ऑडिट ऑफ एन कंपनी. और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है कोई भी कंपनी का एट अ पर्टिकुलर डेट, सो ये सारे पहले उसको क्या देखना पड़ता है? फर्स्ट दे मेक टेस्टिंग. सो जो भी यानी कि जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको टेस्ट करेगा. देन दे हैव कन्वर्ट, तो उन रिपोर्ट्स को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इन अ सिंगल रिपोर्ट. देन उन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. ओके, इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में प्रिपेयर करेगा. ओके, उनको एक डॉक्यूमेंट बनाएगा. उन सारी जो रिपोर्ट टेस्टिंग करने के बाद कन्वर्जन उस रिपोर्ट का करेगा कि हाँ ये सारी जो रिपोर्ट थी इसका ये टेस्ट किया है. देन दे मेकिंग कन्वर्ज. ओके, देन दे मेक इम्प्लीमेंटेशन. और फाइनल जब इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद क्या करेगा? उसको एक डॉक्यूमेंट में ऑडिटर फॉर्म करेगा. द ऑडिटर हैव मेकिंग फॉर्म ऑफ दैट सिस्टम. और फिर उसको डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? लास्टली दे हैव रिव्यू. उसको क्या करेगा? न्यूली रिवाइज करेगा उस सिस्टम को, चेक करेगा कि हाँ ये सिस्टम प्रॉपरली चल रहा है, एलोकेट हो रहा है और प्रॉपरली कंट्रोल कर रहा है ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ ऑफ एन कंपनी. तो ये सिस्टम क्या है? कोई भी सिस्टम को ऑडिटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक कि अगर ये सिस्टम वो अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर रहा है और मेंशन कर रहा है तो ये सारे सिस्टम को क्या है? ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं. फर्स्ट उसको रिव्यू टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन, देन उसको डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्म करने के बाद उस जब वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा वो उसको रिवाइज करना है. ओके, उसका फिर उसको रिव्यू करके, और अगर इफ़ कोई चेंज करना है कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम को तो वो अगर उसे ये सिस्टम प्रीवियस नहीं आ रहा है तो ऑडिटर विल ऑल्सो हैव टू चेंज दैट एप्लीकेशन सिस्टम और उसको एक्सेस करेगा इन अ डॉक्यूमेंटेशन वे. और अगर वो उस सिस्टम को ओके दो कंपनीज़ को पार्टीज़ को कर रहे हैं. ओके, ऑडिटर दो पार्टीज़ के अंदर एलोकेट, ऑडिटर जो भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है तो दो पार्टीज़ के अंडर रहेगा, ऑडिटर और कंपनी. इफ़ दैट सिस्टम और इफ़ दैट एप्लीकेशन इज़ टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टीज़ तो वहाँ पर ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा, उसका एक्वाजिशन करना पड़ेगा कि दैट सिस्टम विल बी फ्रॉम कम और विल बी फ्रॉम गिवन टू. अगर वो सिस्टम थर्ड पार्टी से किसी से लिया है तो वहाँ भी उसका ऑथराइज करना पड़ेगा कि हाँ दिस मेंबर वी हैव टेकन दिस सिस्टम टू दैट ऑथराइज पर्सन. तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक दिस काइंड्स ऑफ सिस्टम ऑल्सो. ओके, सो इस वो सेकेंड पॉइंट है सिस्टम
सॉफ्टवेयर कंट्रोल। फर्स्ट में क्या था, एप्लीकेशन सिस्टम, जो डेवलपमेंट करने हैं ऑडिटर को और चेक करना है, रिव्यू करना है कि हाँ ये सिस्टम इफ़िशेंटली वर्क कर रहे हैं और कौन से ऑथराइज पर्सन से लिया है, इफ़ दे हैव थर्ड पार्टी से उन्होंने एक्वायर्ड किया है, एक्वायर्ड करा है और उसका चेंजेस इफ चेंज करा है एप्लीकेशंस को, सिस्टम्स को, तो वो भी कर सकता है, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल कंट्रोल बेस्ड सिस्टम के थ्रू ही चेंज होंगे। ओके, और सेकंड पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल में क्या देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल इज डिजाइन टू प्रोवाइड assurance. System software is to acquired or develop in a authorized and efficient manner. Okay, so system development किसके लिए करा है, to provide assurance to the company. तो सिस्टम कंट्रोल सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम क्या है, किसके लिए डिज़ाइन करा है, टू प्रोवाइड द अश्योरेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या है, एक कंट्रोलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इफ़ सम पर्सन ऑथराइजेशन से सिस्टम कंट्रोल क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑथेंसिटी प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है, एक अप्रूवल प्रोवाइड करता है, अप्रूवल प्रोवाइडिंग टू द, एक अप्रूवल प्रोवाइड करता है टू मेक टेस्ट, टू मेक इम्प्लीमेंट एंड टू मेक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर और मॉडिफिकेशन। सो सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है, एक ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है कंपनी को, ताकि वो डेवलप कर सके देयर टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सके और किसी भी एप्लीकेशन सिस्टम को लॉन्च कर सके। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल इज प्रोवाइडिंग एंड अप्रूवल, और क्या प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिसिटी फॉर टू डेवलप अ न्यू सिस्टम इन अ कंपनी, और मेकिंग एंड रिस्ट्रिक्शन कि हाँ कोई भी सिस्टम को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ओके, सो ये हमें सॉफ्टवेयर में देखा जाता है। कोई भी अगर हम किसी भी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो उसमें यानी कि पहले यानी कि लिंक्स आती हैं कि यू हैव फॉलो दैट, डिनाई करो या अलाउ करो, तो ये दो ऑप्शन आते हैं। तो डिनाई मीन्स सम काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू दैट। ओके, जब डिनाई करते हैं तो ओके, तो रिस्ट्रिक्शन हम लोग अलाउ नहीं कर रहे। सो अलाउ का मतलब है कि जो इस ऐप की रिस्ट्रिक्शंस है, जो इस ऐप की जो भी सॉफ्टवेयर है या एनी काइंड्स ऑफ यू हैव अवेलेबल टू अप्रूव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सो इस ऐप की जो रिस्ट्रिक्शंस है या कोई भी है, तो अगर आप अलाउ करते हो, सो यू विल बी मेंटेन दिस सिस्टम विल बी सम रिस्ट्रिक्शन बेसिस। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो सॉफ्टवेयर की हैं, इफ़ सब ऑथराइज कर रहा है कोई भी पर्सन, ऑडिटर अगर कोई सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यूज़ करने के लिए कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है और इफ़ सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रूव कर रहा है, तो ऑडिटर को सारी रिस्ट्रिक्शन को करेक्टली मेंटेन फॉलोअप करना पड़ता है और पर्टिकुलर सिस्टम फॉलोअप करेगा वेदर दे ऑथराइज टू अ any kind of personal documentation. Okay, so from today's session we have only discussed our 4 points of scope of audit in a CIS environment. Okay, so all the students are hereby informed that आज के जो सेशंस में we have discussed all the points, जो भी हमने आज के ये सेशन में पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, all kinds of points you have to write down in your notebooks in your home. Okay, and attendance, for your attendance regarding, so all the students should, whether you see that video on YouTube channel, so you have to comment that video, or in comment box you should write your name, your previous roll number or your group A or B. Okay, so all the students will write दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर यू सी योर वीडियो। जब आप ये वीडियो देखोगे तब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लाइक टू द प्रेस बटन, आपको लाइक वीडियो करना है, कमेंट करना है वीडियो पे, कमेंट में अपना इन कमेंट बॉक्स यू शुड राइट, आपको अपना नेम राइट डाउन करना है, अपना प्रीवियस रोल नंबर, जो आपका प्रीवियस रोल नंबर था एमकॉम फर्स्ट ईयर का, यू शुड राइट योर रोल नंबर प्रीवियस, और आप लोगों का ग्रुप, यू शुड मेंशन दैट डिटेल्स इन योर कमेंट बॉक्स वेदर यू सी दैट वीडियो। सो
only from this session we have only discussed 4 points, and next session we have discussed other points of this chapter. Okay, so thank you from that session now.